Hi, Bhaskar ji. So good to Yeah, have you here. yeah. Hello, how are you, Mayank? I am fine. Thank you for giving me the opportunity and all our viewers the opportunity to be live on our show. Just before you came, I was just Yeah, telling everybody how I just got to meet you. You have your beautiful office in Noida, and I came there and I finished your beautiful book that you gave me. That's a signed book, right? Books तो बहुत yeah. आती है पर signed books की अलग ही बात होती है. So I got the signed book of yours. I'm very grateful to you. Hope you enjoyed reading it. Yes, yes, I enjoyed reading it, and because everybody cannot peek into your mind, so we have just requested you so that you can tell more of what came to your mind, how you started this passion of yours, and how you started this career of yours from IIT to beginning to being one of the top successful political strategists of our country. Please tell us about your journey. Sure. Just a second. I think I'm trying to align the video. Yeah. All right. So it just started. While in college, I was as a student in IIT. There is always a saying that we should do something entrepreneurial. We should do something entrepreneurial. So I was quite with that, fascinated with that mindset, and I was also quite sure that I would like to do something, though I was not exactly sure what it will be. At the same time, Anna Andolan was going on, and like everyone of us, mostly be it you, me, or our generation, so all of us was quite, we were, everyone was influenced with that revolution. So was I. So in college, I was participating in it, and then later on, uh, I was somewhere convinced that coming from IIT, at least I will get a job whenever I want to. I will not be jobless. So why not pursue something which can be where I can be a job creator and pursue my passion. So that's where I joined. Initially, I joined Aam Aadmi Party for initial 2 years, and then in 2 years time I understood that exactly politics is not what I am very good at. Rather, I am good at making strategies, collecting data, doing data analytics, somewhere doing more on the planning strategic kind of roles. So then I moved on to start the political consultancy Janta Ka Mood, and Hmm. we worked with Z News. Then we predicted 66 seats to Aam Aadmi Party. In the last Lok Sabha elections, worked with Mr. C.R. Patil, who's right now BJP state president for Gujarat, and he also won with the highest vote margin in India. So primarily that is my journey. Uh, Along the way, I have failed many times. So Yes. that's also, as a startup, one does. But altogether, I would say it's really quite exciting, and you get to meet very powerful people, and the power is basically they are powerful because somewhere they are people's persons, and a lot of these politicians, the Lok Sabha as well as the electoral politicians, I would say, in the process you tend to learn through your interaction a lot of things from them. So that's the, I would say, more than a profession, that's something I really look forward to enjoying. सो अन्ना की भीड़ में वो जो आंदोलन लगा था, अन्ना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो आपने भी अन्ना को ऐसे प्रोत्साहित किया था, उनमें से आपने नहीं 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 उनको वो नारा दिया, नहीं, क्योंकि मैं उस उसमें टाइम नहीं पे था। इस टाइम पे ये स्लोगन बड़े फेमस हुए थे और अन्ना जी को इतना आगे बढ़ाया है लोगों ने, ठीक है। और काफी फनी फनी मीम्स भी चले थे, जैसे वो एक मीम था, सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकलनी है। सो सो अन्ना ये तुम काफी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये काफी अन्ना फनी नहीं फनी आंधी है, मीम्स। देश का दूसरा गांधी है। हाँ, तो आई मीन दीज आर वेरी क्रिएटिव एंड वेरी फनी मीम्स, राइट? सो बट यस, Bhaskar ji, one thing that's very applaudable is you said that if I could not be politics, then I will make sure that politicians come from me. It's like not a king but a kingmaker, right?
And in history, Yeah. as you say, right, only people who fail create something, right? Other than being IITian, I mean, you have. So when did you decide writing this book, and how did this idea of book came to your mind? So actually, I would say that ongoingly, the political consulting landscape, the political advisory landscape, so to say, in India is quite a very new one. And it's not even an industry. It's very in its initial years, like it's less than 10 years old right now. Somewhere in 2013, this very word of political consultancy came into being with, Prashant Kishore came into light after Hmm. Narendra Modi's was declared as prime ministerial candidate for BJP. तो उस समय से ये थोड़ा सा प्रचलन में आया है एंड over the period of time, like I started in 2015 as a full-fledged political consultant. We created our political consultancy company, and at that time there were not many. So even till now also, exactly politicians don't know what, or so to say, politicians as well as whosoever is our target client. Let's say sometimes they are politicians, sometimes they are different political agencies also. So, exactly the very idea of what a political consultant would do. What are the different kinds of services that are needed in elections? Hmm. Uh, is it even required or not required? Can I do everything on my own? Is there a need to manage my rally through some professionals Hmm. and pay them money instead of I can do it through my karyakarta and pay them just for their petrol? और सोशल मीडिया चलाने के लिए क्या मुझे किसी एक्सपर्ट की जरूरत है? क्या मैं खुद Hmm. अपना सोशल मीडिया नहीं चला सकता हूँ? पोस्ट ही तो करना है, Hmm. राइट? मुझे तो सारी चीजें पता है, मैं तो पिछले 15-20 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, तो मुझे कोई आके क्या सिखाएगा? तो Hmm. दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस ऑनगोइंगली चलते रहते हैं और मैंने भी इसको बहुत फेस किया. आप जिसके पास भी जाओ, मोस्टली द पॉलिटिशियंस हु आर Hmm. एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियंस आर Hmm. वेरी सीनियर टू अस एंड उनका कहीं ना कहीं ये माइंडसेट रहता है पैसे देने समय. तो कई बार ऐसा होता है कि वो लेते हैं फिर छोड़ देते हैं. एक एक बार मतलब रिपीट क्लाइंट्स बहुत कम होते हैं क्योंकि एक अच्छा. इलेक्शन के बाद दूसरा इलेक्शन आने में 5 साल लगता है. तो Hmm. 5 साल तक आप कोई भी बिजनेस को सस्टेन करना, एज अ बिजनेस मुझे ये करना है. तो इस Hmm. प्रोसेस में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए. तो कहीं ना कहीं मतलब डेफिनेटली काम करना तो एक चीज है, बट एट द सेम टाइम मेरी ये भी एक क्यूरियोसिटी थी कि यार इंडिया में मतलब हम लोग अब इतना स्ट्रगल हो रहा है तो क्यों नहीं और जगहों से सीखें कि बाहर ये कैसे चलता है, क्या क्या कहीं सक्सेसफुल मॉडल है भी कि नहीं है, क्या Hmm. मुझे चेंज कर देना चाहिए अपना फील्ड, एम आई इन द राइट फील्ड और नॉट. तो इस Hmm. टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस ऑनगोइंगली आते रहते थे, हैं, और मे बी फ्यूचर में भी आते रहेंगे. तो इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं मैंने काफी रिसर्च किया, इंटरनेशनली भी जाके देखा कि अमेरिका में क्या होता है, अच्छा. तो वहां पे ये एक Hmm. फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री है. पिछले 70 साल से पॉलिटिकल कंसल्टेंसी चल रही है वहां पे, फॉर्मली अच्छा. एज एन इंडस्ट्री 70 years. ओके. और हम लोग तो अभी, हमें भी 10 साल भी नहीं हुए. तो वहां भी मैंने कई लोगों से इंटरेक्ट किया, कई पॉलिटिकल कंसल्टेंट से, यूएस के पॉलिटिकल कंसल्टेंट से इंटरेक्ट किया, ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स, देखिए, यूरोप जैसे के, हम लोगों कि को भाई. पता ही नहीं है, कि इस इंडस्ट्री का पायनियर ही कौन है. तो आई मीन, आप किन राइट. को जानते हैं, या किसे कहेंगे कौन है इसका फादर, कौन है इसके पायनियर्स, और आप किससे आप ये जो स्ट्रेटेजीज हैं या अपना टास्क फोर्स बनाते हैं. आई मीन, दो यू आर वेरी टैलेंटेड, बट हाउ डू यू who are the people, right, who are the kings of this field of political consultancy? सो एक तो मैं बोलूंगा कि आप लोग अगर देखना है इसको, इस इंडस्ट्री को और समझना है, तो यूएस एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, बिकॉज वहां पे पॉलिटिकल कंसल्टिंग काफी स्टैब्लिश्ड है. मतलब आप समझ लो कि एक मेयर के इलेक्शन में भी उन्हें पता है कि हमें किसी को हायर करना है. ओके. तो वहां कोई भी, हर कोई अपने साथ प्रोफेशनल्स को लेके चलता है.
तो यूएस एक अच्छा ये हो सकता है। साथ में एक बहुत फेमस पॉलिटिकल कंसल्टेंट हैं, जे टाउनसेंड। हम्म। जे टाउनसेंड, इनका आप वीडियो यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। सो अभी रिसेंटली मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हो रहा था, एक साल पहले। तो ही इज लाइक ऑलमोस्ट 65-70 ईयर्स ओल्ड, 70 ईयर्स उनकी एज है। हम्म। एंड ही हैज बिन डूइंग पॉलिटिकल कंसल्टेंसी सिंस द एज ऑफ 27-28 ईयर्स। ओ माय गॉड। So, like it has been 32, 33 years, हम्म। almost, sorry, 42 years he has been in this हम्म। field. So, हम्म। उनसे मैं काफी कुछ सीख रहा था कि आपको सर क्या क्या चैलेंजेस आए, आपको क्या ऐसा लगा कि छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़, जो जो मेरे क्वेश्चंस थे, हाँ। एज अ यस। इन फ्रंट ऑफ हिम आई एम वेरी जूनियर। सो हम्म। उनसे काफी कुछ सीखा मैंने, काफी कुछ पूछा हम्म। अपने डाउट्स, क्यूरियोसिटी। तो एक उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि 40 years in this field as a political consultant is यस यस। really a very long period of time. One should definitely go through his work. एंड उसके अलावा इस फील्ड की काफी सारी बुक्स भी हैं। इंडिया में तो खैर बहुत कम बुक्स हैं। दो एक अच्छी बुक, ये शिवम शंकर सिंह ने भी, शिवम शंकर की वो बुक अच्छी है, आई थिंक उसका नाम है हाउ टू विन एन इंडियन इलेक्शन। जी So जी that's जी। a good book. Then second, one good person in this field is um, Jay O'Brien. Jay O'Brien is a Russian political advisor, so to say. He was professor as well as advisor as well. So he has some good documents on political consultancy. One can go through that also. Then one can also go through. There is a call coming. Can you hear that? Or Yes, can I I avoid cannot. that? No, no, no. You can avoid the call. The call is not coming in between. Okay, all right. So just a second. So one can go through that. At the same Yeah. time, even at Harvard, there are a few professors whom we can follow. They have some good literature on this. Uh, so all in all, see, this field has lot of subfields, Mm-hmm. as I would say. So अगर आप कोई एक सोर्स खोजो कि एक ही सोर्स से आपको सारी चीजें पता चल जाए, तो वैसा नहीं है। Mm-hmm. You have to see your niche, your specialization, and accordingly you can follow, do in-depth research on that. जैसे speech analysis, how to write good speeches. तो Mm-hmm. उससे रिलेटेड आप कुछ स्पीच वालों को पढ़ सकते हो, बुक उनकी पढ़ सकते हो। आपको कैंपेन मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ देखना है तो उसमें देख सकते हो। टेक वाइज कुछ समझना है या सोशल मीडिया में कैसे इन्फ्लुएंस करना है तो आप उसमें इन डेप्थ जाके देख सकते हो। तो इट्स नॉट जस्ट अ फ्लैट स्ट्रीम, इट हैज वेरी ब्रांचेस, वेरियस Yes, yes. ब्रांचेस विच वन कैन एक्सप्लोर। Yes, yes. I am exactly getting it, or I am just amazed by the vastness of this field. जैसे हम लोगों के प्रोफेशन में होता है फील्ड के बाद सब फील्ड और सुपर स्पेशलाइजेशन. दिस फील्ड आई वाज गोइंग थ्रू अ बुक एंड यू हैव बीन टेलिंग दैट इट हैज मेनी फील्ड्स. और मेनी फील्ड्स में भी अगर मैं एक फील्ड को लूं सोशल मीडिया, उसकी भी हजारों ब्रांचेस निकलेंगी. So it is a एब्सोल्युटली, very लाइक vast field. फेसबुक, ट्विटर, Yes, yes. लिंक्डइन, इंस्टा। यस यस यस, नो डाउट. और उसमें भी फिर ग्रुप्स, इसमें भी कोई लाइव का माहिर है, लाइव कैसे करे, और ऑल दैट स्टफ. आई एम कुडोज टू यू. बट आपने एक बात कही भास्कर जी कि यू वर टेलिंग मी कि आई मीन इट्स अ वास्ट फील्ड. आई जस्ट व्हाट वर वी टॉकिंग. या या आई So जस्ट you were asking me about, how one can learn more about this field, and are there some good literature or books no no which one can go through, yes yes yes, that was the case. You were telling and me, how right? the book was inspired? यस यस यस, नो नो डाउट. भास्कर जी, यू वर टेलिंग मी दैट योर क्लाइंट्स का जो रिटर्न रेट है दैट इज वेरी लेस, है ना? तो इसमें मैं ये सोच रहा था कि क्लाइंट्स का रिटर्न रेट इसलिए कम है क्योंकि एक चुनाव में वो इतना पैसा लगा देते हैं, 80% की तो हिम्मत नहीं होती होगी दूसरा चुनाव लड़ने की. ठीक है, उसमें पैसा ही इतना है. आई मीन सेल अब सेल जो है, अगर एक चुनाव में मिनिमम कोई 2 करोड़ रुपए लगा रहा है तो एक तो 5 साल बाद लौटेगा. और 5 साल के बाद भी आई मीन इट्स लाइक, आई मीन द इन्वेस्टमेंट इज सो मच, आई मीन अदर देन योर कैंपेन फीस एंड ऑल दैट स्टफ, है ना? तो वो तो एक ही बार में कंगाल हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या है कि डिपेंड करता है जो जिस
जो काम कर रहा होता है उसको उसके बारे में आइडिया होता है। तो ऑल इन जाने वाले भी लोग हैं डेफिनेटली, जो अपने इलेक्शंस में ऑल इन चले जाते हैं और कंगाल हो जाते हैं। बट एट द देखिए सेम टाइम क्या होता है कि एक इलेक्शन के बाद दूसरे इलेक्शन के बीच में ही 5 साल का ड्यूरेशन है। तो हम्म, लेट से अगर आप सोचो कि आप किसी एक जगह पे आप सिर्फ एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट हो और आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट में ही स्टेशनड हो, तो वहां पे जो भी आपका क्लाइंटेल है हम्म, उनका जब वो खर्च करने के मोड में आएंगे तभी तो आपको भी देंगे या आपकी सर्विसेज हम्म, लेंगे, राइट। उस अगर वो उस स्पेस उनका साइकिल ही 5-5 साल का है, तो हम्म, आप सिर्फ ये सोच के कि मैं एक ही जगह रहूं और मैनेज कर सकूं वो थोड़ा मुश्किल है, स्पेशली इंडिया में। क्योंकि सिर्फ मतलब ऐसे तो काम तो हर समय ही रहता है कोई भी पॉलिटिशियन को, बहुत सारे, इवन व्हेन दे विन देन आल्सो देयर इज लॉट ऑफ वर्क। लेकिन इंडिया में क्या माइंडसेट है कि जीत गए तो अब तो कोई हटा तो सकता नहीं है, अब फिर 4.5 साल बाद सोचेंगे कि 5वें साल में कैसे आना है। तो इस वजह से प्रोफेशनल्स के पास इतना पैसा नहीं होता है ना कि वो इतने लंबे समय तक मतलब ऐसे ही सरवाइव कर ले। तो हाँ you're right. आपको ऐसे अब एज अ बिजनेस मॉडल्स सोचने होंगे, निकालने होंगे। मे बी एक ही जगह पे आपको नहीं रहना होगा, आपको मूव करते रहना होगा। तो उस तरह से बिजनेस है इसमें और अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन अगर आप सोचो कि एक ही जगह स्टेशन होके सारा काम करो तो देन इट्स डिफिकल्ट, यू हैव टू See, I इवॉल्व। really, हाँ, I completely agree. भास्कर जी, एक आपके बड़े रेवोल्यूशनरी आइडिया से मैं काफी इंस्पायर्ड हूँ। आपने अपनी पुस्तक में लिखा है कि पॉलिटिक्स ऑफ फ्यूचर में वी विल नो डाउट हैव टू ब्रिंग दिस पॉलिटिक्स या इलेक्शन वोटिंग ऑन टू ब्लॉकचेन, है ना? सो व्हाट डू यू वांट टू से बाय दिस थिंग एंड हाउ हाउ पॉसिबल इट इज, राइट? बिकॉज देखिए, क्रिप्टो तो हो ही रहा है, बट क्रिप्टो के अलावा भी अब सीबीएसई की पेपर भी शायद वे प्लान कर रहे थे। बट अगर ये आपका आइडिया इतना रेवोल्यूशनरी हो जाता है, बिकॉज 1 year बैक आई वाज आल्सो थिंकिंग द सेम, अगर ये हो जाता है तो आई थिंक, आई मीन, देयर कैन बी सो मच पार्टिसिपेशन। कॉस्ट कटिंग कितनी हो सकती है? लाखों करोड़ रुपए जो बहुत भारत हम ज्यादा। वेस्ट करता है, तो सिर्फ मोबाइल पे ही हो जाएगा। सिर्फ मोबाइल पे ही हो जाएगा, वो तो एक चीज है। दूसरा, जो लोग मान लो कि है नहीं वहां पे, वो हम्म, भी मतलब जैसे आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि फेक वोटिंग की, हाँ हाँ, फेक वोटिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी बिकॉज आपका आइडेंटिफिकेशन स्टैम्प्ड है। तो फेक वोटिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कोई कहीं भी है वो वहां से वोट कर सकता है, आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। हम्म, इतना ट्रैवलिंग भी आपका बच जाएगा। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं डेफिनेटली। और इससे डेमोक्रेसी को तो खैर काफी फायदा, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। इवन जो गवर्नमेंट्स इलेक्ट होके आ रही हैं उसमें भी चूंकि वोटिंग परसेंटेज ही बढ़ गया तो पॉपुलैरिटी गवर्नमेंट्स की बढ़ जाएगी। तो ये सारे तो बेनिफिट्स हैं ही डेफिनेटली अगर हम ब्लॉकचेन पे आते हैं तो। अब लेट्स सी, बिकॉज कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज एंड ऑल वो लोग तो आ रही हैं वहां पे भी। वोटिंग ऐसा नहीं है सिर्फ इलेक्शन स्पेस और पॉलिटिकल स्पेस में होता है, वोटिंग इज अ फिनोमिनन जो कि लगभग हर इंडस्ट्री में होता है। जहां हम्म। भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहां भी लेट्स से एसोसिएशंस हैं, हर जगह ही वोटिंग का फिनोमिनन होता है। तो बाकी सब जगह तो ये आ रहा है। आई डोंट नो कि इलेक्टोरल लेवल पे लोकसभा विधानसभा इसमें ये कब आएगा, बट जब भी आए तो बहुत अच्छा है। वैसे आई इंडिया मीन में एक पायनियर प्रोफेसर है, रजत मूना। हम्म, वो पहले आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर थे और अभी आई थिंक आईआईटी भिलाई के वो डायरेक्टर हैं। तो ही हम्म। इज वर्किंग एक्सटेंसिवली ऑन दिस वोटिंग ऑन ब्लॉकचेन्स। देखिए, तो अगर ये हो जाता है तो आई थिंक इट विल बी वन ऑफ द, आई मीन, माइलस्टोन्स दैट इंडिया विल प्रेजेंट टू द वर्ल्ड, राइट? अगर वोटिंग ऑन ब्लॉकचेन इट हैपेंस, आई मीन, कितना कॉस्ट तो हम वो नहीं ले रहे हैं कि जो लोग अपना पेट्रोल लगा के वोट देने जाते हैं, वो तो हम कॉस्ट में ले ही नहीं रहे हैं। लाखों करोड़ों एब्सोल्युटली। रुपए का आपका आइडिया ये है ना? अच्छा भास्कर जी, एक आपने बुक में बात कही है, आज तक हमने डेमोग्राफिक्स तो बहुत सुना था, ये साइकोग्राफिक्स क्या कहते हैं आप? तो साइकोग्राफिक्स आपने अभी ये कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस जब हुआ था हाँ हाँ हाँ। रिसेंटली, कुछ टाइम पहले था, तो हम्म, साइकोग्राफिक्स उसमें बहुत ज्यादा यूज हुआ है। हम्म, बेसिकली साइकोग्राफिक्स क्या है? ये एक टेक्निक है किसी के साइकोलॉजी को समझ के
उसको पोच करने की, या उसको उसको टारगेट करने की, उसको इंगेज करने की। अब जैसे क्या है, साइकोग्राफिक्स क्या बोलता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, हम्म। ठीक है, उन सारे इंडिविजुअल्स को वो 5 कैटेगरी में डिवाइड करता है। हम्म। अब कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे मान लो कि मुझे कोई एक मैसेज, मुझे आपसे कोई एक आउटकम चाहिए। जैसे कि अगर मैं वोटिंग की बात करूं या इलेक्शंस की बात करूं, तो मैं क्या चाहता हूं? अगर मान लो कि मैं बीजेपी का वोटर हूं या मैं कांग्रेस सपोर्टर हूं, आप कांग्रेस के हैं मान लो, या बीजेपी के हैं, तो आप मेरे से क्या चाहेंगे कि मैं आपकी पार्टी को वोट करूं। हम्म। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। अब जितने भी कैंपेन्स आप कर रहे हैं, लेट से आप सोशल मीडिया फील्ड, ये वो XYZ भाषण, ये सारा कुछ का एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? आप यही चाहते हैं कि मैं आपकी पार्टी को वोट करूं, हम्म। राइट? अगर मैंने ऐसे ही बोल दिया कि यार मैं आप ही की पार्टी को वोट कर रहा हूं और मैंने कर भी दिया, तो आप तो इतना सारा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? तो साइकोग्राफिक्स भी एक तरीके का आप समझ सकते हो कैंपेन है। कैंपेन का टेक्निक है, जिसमें कि क्या किया जाता है कि जैसे आप आजकल इंडियन डेमोक्रेसी में कैंपेन्स देखते होंगे कि लोग गाना, इसका गाना, उसका गाना, पार्टियों के गाने, जिंगल्स, ये सब चल रहे होते हैं। बट यूएस में कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्पेशली अगर मैं केस बोलूं, तो वहां पे वो किस तरीके के कैंपेन्स कर रहे थे। अब मान लो कि एक बंदा है जो साइकोलॉजिकली ही इज अ फियरफुल पर्सन, उसको डर हम्म। लगता है, हम्म। ठीक है। तो इफ ही इज अ फियरफुल पर्सन, तो हम सबसे पहले तो हमने ये देखा कि वो किस टाइप का पर्सन है, व्हाट इज द ट्रेट ऑफ दैट पर्सन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्सन। अब मुझे पता चल गया कि यार ये फियरफुल पर्सन है, तो अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे अपने को ऐसे पोजीशन करना है कि आपका जो डर है उसको मैं ही दूर कर सकता हूं, या हमारी पार्टी ही दूर कर सकती। ठीक है, मेरे सारे कैंपेन्स ऐसे रहेंगे कि कहीं ना कहीं डरा के आपको मैं बाहर अच्छा। निकाल लूंगा उससे। ओके। ओके। हम्म। अगर अगर कोई, तो अब जैसे एक सिंपल सा उसको एग्जांपल में समझ लो कि मान लो कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा एक प्राइवेट बीच है और मैं चाहता हूं कि वहां पे कोई तैरने नहीं आए, ठीक है। तो एक मैसेज तो मैं ये लगा सकता हूं कि दिस इज अ प्राइवेट बीच, डोंट स्विम हियर। हम्म। तो ऐसा हम मैसेज लगाते हैं तो फिर सारे लोग वहीं जाते हैं स्विमिंग करने। हाँ, यहां नो हमने डाउट। देखा है जहां भी नो पार्किंग रहती है, सब लोग वहीं पे पार्किंग करते हैं, है ना। जहां पे शौचालय का नहीं करना है, वहां सब लोग वहीं पे करते हैं। तो ये एक टाइप की मैसेजिंग हुई हमारी, ठीक है, जो कोई नहीं सुनता है। अब दूसरी मैसेजिंग क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव तो यही है कि ये मेरा प्राइवेट बीच है और कोई इसमें स्विम नहीं करे। तो मैंने मैसेज लगा दिया कि कृपया यहां स्विमिंग मत करें क्योंकि यहां शार्क्स आ जाती हैं। अच्छा। तो आप अब बताओ, अब कोई वहां स्विमिंग करने जाएगा? नो, नॉट एट ऑल। नहीं जाएगा, है ना। लोगों की फट लगी कि यहाँ शार्क आ जाता है भाई। तो अनलेस अनलेस दैट्स दी। अनलेस अनलेस शार्क्स वो मैसेज पढ़ लें और शार्क्स चली जाएं खुद। तो ये है एंड आउटकम। तो मेरा रीच हो गया कि कोई हाँ। वहां स्विमिंग करने नहीं आया। मुझे यही तो चाहिए, अब चाहे वो जैसे भी जनरेट हो। तो हाँ। दिस टेक्निक इज कॉल्ड साइकोग्राफिक्स। मैंने आपके फियर से प्ले किया, मुझे पता है आप फियरफुल हो, मैंने आप में डर जगा दिया। यस, यस, यू आर राइट। अब मुझे पता है कि आप पैट्रियोटिक पर्सन हो, तो आप देखो, एक पार्टी है जो सिर्फ पैट्रियोटिज्म का प्रचार करती है, कि जितने भी पेट्रियोटिक वाले ट्रेट के लोग हैं उन सारों को वो अपील करती है। हाँ जी। तो ये साइकोग्राफिक्स इसको बोलते हैं, ये और ज्यादा एडवांस्ड कैंपेनिंग है। अक्षय कुमार अभी कपिल शर्मा के शो में गए थे, और शायद आपने देखा होगा, तो कपिल शर्मा ने कहा कि अक्षय कुमार से कि आपने अभी किसी का इंटरव्यू लिया था, तो अक्षय कुमार ने कहा था किसका इंटरव्यू लिया था, आप नाम लेके दिखाइए। तो वैसे ही आप भी उस पेट्रियोटिक पार्टी का नाम लेने से बच रहे हैं।
नहीं नहीं, मुझे नाम लेने में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। मतलब मैं तो खैर अभी नाम का तो कुछ करना नहीं है हमें। हाँ अ, हमें तो बात करनी है कि भाई हाँ, नो डाउट नो कॉन्सेप्ट के डाउट। ऊपर। यस यस, और इन सब चीजों से नो डाउट कंट्रोवर्सी ज्यादा होती है, बट वी हैव टू फोकस मोर ऑन द, आई मीन एसेंशियल थिंग्स, राइट? सो भास्कर जी, एक मेन बात जो सब लोग जानना चाहते हैं कि वो 3 मिस्टेक कौन सी हैं जो हर पॉलिटिशियन करते हैं, बिकॉज आपका टाइटल इतना कैची है, 3 मिस्टेक्स दैट, 3 हॉरिबल मिस्टेक्स, यू हैव एडेड एडजेक्टिव आल्सो, राइट? थ्री हॉर मतलब कोई पॉलिटिशियन अगर उसे पढ़ ले तो वो मर ही जाए। ऐसी कौन सी 3 मिस्टेक हैं जो वो कर रहे हैं? देखो, एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो वो करते हैं, वो ये करते हैं कि वो सारा कुछ खुद ही करना चाहते हैं। यस, नो डाउट। वो अपने अराउंड टीम बिल्ड नहीं करते। हम्म। तो आप सारा कुछ नहीं कर सकते हो, आपको एक टीम चाहिए जो आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप उनके साथ शेयर करो। एंड इलेक्शन इज अ टीम वर्क, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल वर्क। हम्म। तो एक तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो वो करते हैं। दूसरा, वो टेक को नहीं मानते हैं। मतलब मोस्टली एक ढर्रे पे जो चले आ रहे हैं वो वैसे ही चले आ रहे हैं। वैसे जस्ट टू शेयर विथ यू 3 हॉरिबल मिस्टेक्स, ये जो टाइटल है, तो इट इज लाइक, जब आप बुक पढ़ोगे पहले चैप्टर में, तो मैंने 7 मिस्टेक्स शेयर करी है वहां पे। हाँ जी जी, नो डाउट। तो ऐसा, राइट, तो ऐसा नहीं है कि हर कोई यही 3 मिस्टेक करता है जो अभी, हाँ। लेट से तीसरी मिस्टेक मान लो कि है कि कई बार ना उन्हें प्रोसीजर नहीं पता होता इलेक्शन हम्म। का। और आप देखोगे कि लास्ट मोमेंट पे कई लोग आएंगे, वो कहेंगे कि यार मेरा नॉमिनेशन ही रिजेक्ट हो गया। अच्छा। स्पेशली बहुत सारी नई पार्टीज या फिर बहुत सारे एक्टिविस्ट्स जो सोचते हम्म। हैं कि मैं हम्म। हम इलेक्शन में आके कुछ ऐसा करेंगे कि उनका लोग बहुत चाहते भी हैं और वो हाँ। इलेक्शन कंटेस्ट करने आ भी जाते हैं। लेकिन एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज जब वो अप्लाई कर देते हैं, अपना पर्चा भर देते हैं, उसके बाद उनका फॉर्म रिजेक्ट करवा देती है। अच्छा। बहुत सारे ऐसे केस मुझे मिले हैं जिन्होंने ये कहा कि यार हमने भरा तो था, हमें लड़ना था इतनी सीट से, लेकिन मेरा नॉमिनेशन ही रिजेक्ट हो गया, अच्छा। क्योंकि तो उनको मतलब सारे प्रोसेस पता नहीं। मतलब मतलब बोलो। नॉमिनेशन भरने का प्रोसीजर भी काफी टेक्निकल है, आप कह रहे हैं? इट्स वेरी टेक्निकल वर्क। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। वो बकायदा एक फॉर्म होता है, इलेक्शन कमीशन जो रिलीज करता है, और उसमें एडवोकेट्स जो जिनको पता है कि कहाँ क्या भरना है, अगर आप उस तरह से नहीं भरोगे तो आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। अब सोचो, आपने पिछले 6-8 महीने से जितनी भी तैयारी की हो, आप सब कुछ कर रहे हो, इतने पैसे खर्च कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, सारा आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया, तो क्या करोगे? राइट। तो और कहने को तो ये मतलब, वो किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेंगे नहीं, क्योंकि वो आ, ये सोचते नहीं कि उनको टीम की जरूरत भी है ना? नहीं, कभी कभी नॉमिनेशन पे तो कोई सोचता ही नहीं है। हर कोई अपनी हम्म। कैंपेनिंग में लगा रहता है। उन्हें लगता है कि चुनाव तो हम लड़ ही लेंगे, चुनाव लड़ना क्या है, बस मन बनाना अच्छा। है कि चुनाव लड़ना है। उन्हें टे, टेक्निकल भी कुछ हो सकता है, ये सब उनको सोचना ही नहीं है। जी जी जी। जब फॉर्म भर के जमा कर देते हैं तो लगता है कि यार हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, सब कुछ ऐसे ही चलता है, लेकिन रिजेक्ट हो जाता है। तो आप सोचो कि कितना बड़ा लॉस है। तो वही, उसमें मैंने 7 मिस्टेक्स शेयर करी हैं जिस जो कि कॉमनली मैंने ऑब्जर्व किया कई सारे पार्लियामेंटेरियंस, पॉलिटिशियंस, एमपी, एमएलए कैंडिडेट से इंटरेक्ट करके। उसमें से कोई 3 भी आप कर दो तो मतलब, वैसे तो एक भी कर दो तो गेम ओवर, यू लेकिन कैन 3 कर कॉस्ट, दो तो मतलब। हाँ मतलब इट कैन कॉस्ट यू योर एंटायर मनी दैट यू आर यूजिंग, योर रेपुटेशन एंड व्हाट नॉट, है ना? एब्सोल्युटली। एक ही आदमी जीतता है एक जगह से, बाकी सारे हार जाते हैं। ये काफी अच्छे वेरिएबल्स बताए और इन पे कोई सोचता नहीं है ना? आपने बिल्कुल सही बताया। अच्छा भास्कर जी, एक आपका क्योंकि टेक्नोलॉजी पे काफी अच्छा कमांड है, मैं आपकी बुक से जा रहा था, आपने कहा हाउ टू असेस योर ऑनलाइन रेपुटेशन, हाउ टू फिक्स ऑनलाइन रेपुटेशन। You will not believe I am going through a Gary Wong-Yuk's book. Gary V. He's a very famous motivator, और he speaks on social media strategies. उनकी बुक है चक इट करके, है ना?
उसमें भी इतनी डिटेल में ये सब नहीं बताया हुआ, हाउ टू फिक्स योर ऑनलाइन नेगेटिव रेपुटेशन, यू नो, हाउ टू असेस योर ऑनलाइन रेपुटेशन. आई मीन दीज आर वेरी टेक्निकल थिंग्स one should really go out for, and this have been very helpful to me personally, right? जैसे आपने एक चेकलिस्ट दी है, मैनेजिंग योर ऑनलाइन रेपुटेशन चेकलिस्ट. आई मीन being a pioneer, somebody else is writing on digital media and they are not sending these kind of strategy. I think it's a very strong point of yours that you have given this checklist, you know, or how to manage your social media measurement. और एक बड़ी प्यारी मैं टर्म आपसे देखी मैंने, उसमें मैं चाहता हूँ आप कुछ वर्ड्स बोलें. सोशल मीडिया सर्जरी. ये क्या है? सोशल मीडिया सर्जरी क्या है? आप मेडिकल फील्ड से हो तो आप कुछ ऐसा निकाल ही लेते हो, हाँ. तो बेसिकली ये भी यही है सोशल मीडिया का ऑपरेशन. सोशल अच्छा. मीडिया ऑपरेट करके हम उसमें से जो भी चीज जो आपके निगेटिव में जा रही है उसको सर्जरी करके हटाते हैं. उसकी अलग अलग टेक्निक्स हैं. कई बार हम लेट्स से कि वो लिंक्स ही हटा दिए हमने, कई बार हमने इतने पॉजिटिव कर दिया कि निगेटिव ही नीचे चला गया. एक बहुत अच्छी कहावत है इन ऑनलाइन मीडियम्स के बारे में कि बरी इट ऑन द सेकंड पेज. इफ यू वांट समबडी टू डाई देन बरी इट ऑन द सेकंड पेज. क्योंकि जनरली फर्स्ट पेज से सेकंड पेज पे जाने में मतलब समझ लो कि 93% पॉपुलेशन जो भी ऑनलाइन यूजर्स हैं वो फर्स्ट पेज से ही चले जाते हैं वापस, सेकंड पेज तक कोई पहुंच ही नहीं पाता है. अच्छा. तो सारी नेगेटिव न्यूज को अगर आपने सेकंड थर्ड फोर्थ पेज पे कर दिया तो आपने ऐसे ही पहले पेज पे सब पॉजिटिव आ गया. देखिए, जिन्हें वोट देने हैं वो तो नहीं जाते, परंतु ये जो क्रिटिक है ना, ये सेकंड नहीं, ये गड़े हुए मुर्दे भी खोद देते हैं. हाँ, तो अब देखो ये तो एक ऑनगोइंग काम है ना. जैसे आप अपना हेल्थ मैनेजमेंट करते हो, फिटनेस मैनेजमेंट करते हो, उसी तरह से अपना रेप्यूटेशन मैनेजमेंट भी अगर आप पब्लिक लाइफ में हो तो सोचो कि एक बार कर लिया आपने और लाइफ लॉन्ग रह जाएगा वो. तो ऐसा नहीं है. आपको ऑनगोइंग बेसिस पे अपना रेप्यूटेशन मैनेजमेंट करना होता है क्योंकि क्रिटिक्स भी आते रहेंगे. आप जितना पॉपुलर, और ये तो खुशी की बात है बेसिकली, जो जिसके बारे में जितनी गालियां दे रहा है समझ लो कि वो उतना फेमस हो रहा है, उतना फेमस है. तो आपको दोनों मैनेजमेंट साइमल्टेनियसली करते रहने पड़ेंगे. अगर पब्लिक लाइफ में हो तो अगर फर्क ही नहीं पड़ता, उतना फेमस ही नहीं हो तो कौन कितना गाली दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है. अच्छा भास्कर जी, एक आपने अच्छी चीज बताई ना, मोबाइल टेक्नोलॉजी इज टू मोबाइलाइज एक्शन. ये अपने आप में ही एक कोट हो गया, वन लाइनर हो गया. मोबाइल टेक्नोलॉजी इज टू मोबाइल एक्शन, मोबिलाइज एक्शन, राइट? And then you said the future of artificial intelligence and our government. What do you have to say on this? The future of artificial intelligence and our government. How is this related? You know, अगर देखिए blockchain तो जो होगा, but अभी how it is related other than the psychographics and other than all that stuff. देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इट्स अ रिवोल्यूशनाइजिंग कॉन्सेप्ट जो कि कोई भी इंडस्ट्री हो, यू नो, हर चीज को ही रिवोल्यूशनाइज कर रहा है. जस्ट अगर मैं आपको एक छोटा सा इंस्टेंस बताऊं, लेट्स से लॉ की फील्ड में बताऊं या फिर जुडिशरी की फील्ड में बताऊं, तो इतने सारे जो जजमेंट्स हैं, पुराने जजमेंट्स हैं जो वैसे केसेस में कोई मान लो नया केस आता है सरकार, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट के पास फॉर दैट मैटर, तो उसमें पहले क्या हुआ है, यू नो, अगर आपको उतना रिफाइंड वे में सिर्फ कीवर्ड्स डालने पे सिर्फ वैसा इंटेलिजेंस मिल जाए, वैसी एनालिसिस मिल जाए, तो उसके बेसिस पे आपको जजमेंट टाइम आपका बहुत कम हो जाएगा ना. सो दैट्स व्हाट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मतलब इट्स काइंड ऑफ प्रिडिक्टिव कि क्या हो सकता है इस केस में बेस्ड ऑन पास्ट. दूसरा, जैसे मान लो कि लेट्स से कोई पुलिस केस है या पुलिस में तरह तरह के केसेस होते हैं, थेफ्ट, कई सारे थेफ्ट होते हैं, तो थेफ्ट कहाँ कहाँ से हो रहे हैं, किस समय हो रहा है, यू नो, उसका एक पैटर्न पता चल जाए हमें उसको स्टडी करके, तो मे बी हम कुछ मिटिगेटिव मेजर्स लगा सकते हैं कि भाई इस एरिया में इस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज्यादा थेफ्ट हो रहा है, तो हम उस पर चेक्स एंड बैलेंस लगा दिया हमने. इलेक्शन में भी बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीजें हो सकती हैं. जैसे कि मान लो एक तरह से तो आप ऐसे समझ लो कि
जैसे रिसोर्स मैपिंग, किसी पॉलिटिशियन को का कोई रिक्वायरमेंट है तो उसको किस टाइप के रिसोर्सेज, लेट्स से उसको कोई हायरिंग करनी है तो कैसे रिसोर्सेज उसको चाहिए, तो एक रिसोर्स पूल में से आप उसके इंटरेस्ट के बेसिस पे जैसा उसने पास्ट में हायर किया है उस पैटर्न को देखते हुए उसको सजेस्ट करो तो उसका टाइम कंज्यूम लेस हो जाएगा। तो इस टाइप की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। गवर्नेंस आप में तो खैर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, हर फील्ड में कोई सा भी डिपार्टमेंट ले लो, बहुत सारी चीजें हैं। एक्चुअली हेल्थ केयर में तो काफी यूज हो ही रहा है, और आपने अपनी बुक में भी मेंशन किया है कि कैसे इवन इबोला, और इबोला हाँ, क्या, आरोग्य ऐप से कोविड तक दे वर ट्रैकिंग, एंड सो दिस इज रियली एब्सोल्युटली। so to conclude, Bhaskar ji, I really wanted to ask you ki, when we are concluding this, when you take up a campaign, what are the things that you are providing, and what are the number of days that you take over, when do you take over in an election, and how do you help the candidate? Because I'm sure I personally send these videos to a lot of political candidates that they watch, So how do you help those candidates, and when does the role of a political consultant comes in? टिकट के पहले, टिकट के बाद, कब? तो बेसिकली देखो, हमारा जो वर्किंग स्टाइल है, हम तो मेजरली ये देखते हैं कि ऐसे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आज के डेट में पॉलिटिकल कंसल्टेंट की जरूरत सिर्फ इलेक्शन से पहले नहीं पड़ती है, बट इट्स काइंड ऑफ फॉर अ रेगुलर पॉलिटिशियन, इट्स थ्रू आउट हिज लाइफ साइकिल। एट डिफरेंट स्टेजेस ही नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज। जैसे कि लेट्स से जस्ट आफ्टर व्हेन ही विंस, सो ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस समय से लेके पहले 2 3 4 साल तक, ही नीड्स ऑफिस मैनेजमेंट काइंड ऑफ थिंग, Okay. where when he becomes a public representative, there are a lot of complainants, citizens who come to him for their different kinds of complaints, and he helps them, most of them. So, but he is not tracking whom he is helping. He's just Okay. doing it and getting rid of that data. But if that data management is done during that period of time, so then what happens is that जब इलेक्शन आएगा तो अल्टीमेटली इसको उसी के पास जाना है, पॉलिटिशियन को। और मान लो कि 3 साल पहले अगर मैंने आपका कोई काम कराया है और आज इलेक्शन के समय मैं आपके पास आ रहा हूं और कह रहा हूं कि यार उस समय आपका काम कराया था, अब आज भी मुझे वोट दो, मैं आऊंगा तो और भी आपके और सारे काम कराऊंगा, क्योंकि पहले भी आप देख ही रहे हो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड। तो एक मैसेजिंग ये हो गई। दूसरी मैसेजिंग, जो मेंटेन नहीं करते हैं वो आके फिर से, बंदे को भी पता है कि चुनाव आ गया, अब नेताजी आएंगे, नेताजी क्या कहेंगे, मुझे वोट दो। उनको कुछ पास्ट का कुछ याद ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ मेंटेन ही नहीं किया है। अब 2 लाख लोगों में से 50,000 ने उसका उन्होंने काम भी किया अलग अलग टाइम पीरियड पे, तो आपको याद थोड़ी रहेगा कि यार फलाने साल में मैंने 365 दिन में इन 1,000 लोगों का काम किया था। तो हम उस समय ऑफिस मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं। Okay. अब जब ऑफिस मैनेजमेंट हुआ उसके बाद मान लो कि कई सारे लोगों का जो काम हो गया, तो आपको अब टेस्टिमोनियल्स भी तो चाहिए। वो लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे कि नेताजी ने हमारा काम करा दिया, तो लोगों के बीच कितना अच्छा एक पॉजिटिव चीज बिल्ड होता है सोशल मीडिया पे या ऐसे भी उनके अपने सर्कल में। तो आपको वो चाहिए, उससे आपका बाद में चुनाव का खर्चा बहुत कम हो जाएगा। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट वहां आ गया। तो देखो क्या, फिर इलेक्शन के समय में तो खैर लास्ट के 6 महीने में तो बहुत तरीके के मैनेजमेंट्स हो गए, वोटर मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट, सोशल मीडिया, डिजिटल, सो ऑन, फील्ड मैनेजमेंट, वॉर रूम एंड ऑल। सो पूरे 5 साल के पूरे लाइफ साइकिल में एक बार जब आप पॉलिटिशियन बन जाते हो, उसके बाद से हर समय आपको किसी ना किसी तरीके की सर्विस अलग अलग स्टेजेस पे चाहिए होती है। आप ऐसे कह उसका रहे हैं फंडिंग ऊपर कि नीचे हो सकता है, बट वन नीड्स ऑल ऑफ दैट। आप ऐसे कह रहे हैं एक पॉलिटिशियन को पॉलिटिकल कंसल्टेंट वैसे चाहिए जैसे कि एक बच्चे को पूरी लाइफ डॉक्टर। कह सकते हो आप, हाँ। नो डाउट। मैं अच्छा बिल्कुल, हाँ। भास्कर जी, एक सवाल ये है, किसी ने डीएम में भेजा है ना, चुपके से, आगे नहीं भेजा। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास अलग अलग पार्टी के 2 कैंडिडेट होते होंगे और क्लैश ऑफ इंटरेस्ट तो रहता ही होगा, जैसे अगर प्रशांत किशोर जी का अगर कांग्रेस के साथ फॉल आउट देखेंगे, तो कुछ ऐसे प्रश्न भी उठ के आ रहे थे कि ये तो वहां पे
ममता जी को हेल्प कर रहे हैं, वहां पे ये आम आदमी को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कैसे इनके साथ ट्रस्ट करें? नहीं तो ये आप कैसे एथिक्स मेंटेन करते हैं इसमें? ओके, तो जस्ट उसको कंप्लीट करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जैसे आपने सर्विसेज के बारे में पूछा, तो ये सारी चीजों का मोस्टली या तो कई सारी सर्विसेज हम देते हैं और कई सारे हमारे नेटवर्क में पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स हैं, तो हम उन्हें रेफर कर देते हैं। तो मोस्टली चूंकि ये एक बुटीक है, मतलब कि जैसे आपका मेरे साथ कंफर्ट है, तो आप चाहोगे कि मोस्टली मैं ही आपको हेल्प करूं, हम्म। यू नो, टू गेट योर बुके ऑफ सर्विसेज। यस, यस। Whether I do, so I'll directly do. If I don't do, then I refer you somebody who's trustworthy. So हम्म। that is how this field and this industry works, and that's what we do. Now coming on to the second question जो अभी आपने पूछा कि conflict of interest हम कैसे मैनेज करते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो हम किसी एक एरिया में, एक ज्योग्राफी में एक ही पर्सन के साथ काम करते हैं ओके। और एक्सक्लूसिविटी रहती है, मतलब एरिया वाइज एक्सक्लूसिविटी रहती है। अगर हम लेट्स से यूपी में किसी के या नोएडा में किसी के साथ काम कर रहे हैं, तो नोएडा की ही दो पार्टियों को नहीं ले लेंगे। अच्छा। ओके। हाँ, अगर एक नोएडा का है तो दूसरा लखनऊ का हो सकता है, जहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। जो भी कोई अगर पूरा स्टेट का काम कर रहे हैं तो उस स्टेट में दूसरी पार्टी के साथ नहीं करेंगे, तो हम्म। एक्सक्लूसिविटी रहती है। अच्छा, अच्छा। आई अंडरस्टैंड एंड आई गॉट योर मैसेज ऑल्सो, है ना? So Bhaskar ji, I want to conclude by telling that you are doing a very wonderful work, and above all, you are following your passion, and that's what's connected me to you. So, and the law of the universe which says is people connect to people who are passionate, right? And that's how I came to you. And to all my viewers who are watching today and who will watch in the future as well, I have met you in person, sir, and I really like the way you explain things, your openness about things, into sharing this thing, because political consultancy is really a very young field, and yes, we really need people like you who are going to begin and start and build more people. What is the scope of youngsters? Can you just tell us, if they choose at this time of unemployment, if they choose political consultancy as a profession? So see, this is a field which is an upcoming field, and it really, there is lot of scope for talented people in this field. But it's not that कि आप आ जाओगे और आपको काम मिल जाएगा. It's like you have to be specialized. You have Okay. to gain experience. Maybe that अगर आप इस फील्ड के नहीं हो तो मे बी थ्रू इंटर्नशिप्स, थ्रू सम वोकेशनल कोर्सेज. अब कोई भी एक चीज पकड़ो, मतलब ऐसा नहीं है कि सारी चीजों में आप कमांड कर लो, वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है. कोई एक चीज पकड़ो और उसमें स्पेशलाइज करो, और उसके बाद आप इस फील्ड में आओ, तो अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है. जस्ट टू शेयर विथ यू वेरी स्मॉल नंबर, लेट्स से अभी लोकसभा इलेक्शंस 2024 में होने वाले हैं, राइट? तो लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उसमें कुछ नहीं भी तो मोर देन 10,000 स्किल्ड रिसोर्सेज वुड बी नीडेड अक्रॉस इंडिया, विच जिनका एम्प्लॉयमेंट उस 6 to 8 months पीरियड के विंडो में होगा. एंड उतने स्किल्ड रिसोर्स अभी नहीं है इंडस्ट्री में, इस फील्ड में. एस्पिरेंट्स हैं लेकिन स्किल्ड नहीं है, उनके पास वो टैलेंट नहीं है. तो अगर किसी के पास टैलेंट है तो एस्पिरेंट्स है, पर आईआईटीएंस नहीं है. नहीं नहीं, मैं सिर्फ आईआईटीएंस तो सारे लोग नहीं हो सकते हैं. तो डेफिनेटली उसका तो एक बेनिफिट या एडवांटेज मिलता है. बट एट द सेम टाइम मैं बोलूंगा कि अगर आप अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड भी हो तो भी अपॉर्चुनिटी तो बहुत है यार, इसमें कोई दो राय नहीं. एंड और आने भी वाली है और बढ़ने भी वाली है. जी जी. So definitely one should look after. This is actually a sought after field. You should think of it formally as making your career. Like earlier you used to make, let's say, IT as your career, or let's say civil engineering as your career. Now you can think of making political consultancy as your career. You can reach out to me. I would love to help you wherever I can. To anyone. To all the viewers who are connected with us and who are going to be connected in Read the future, book. You will get a lot of ideas. Yes, no doubt, no doubt. I have the signed copy, and
We are ready to give more signed copies if someone just texts us, just like we did with the case of Dr. Karan Singh sir, we did with Mr. Natwar Singh sir's book. We are going to send out more of the books of signed of Mr. Bhaskar Singh ji, and thank you so much for giving me this precious time of yours. I've been trying to speak to you Thank you, since last Mayank. 2-3 months. Thank you so much, sir. Thank you, Mayank. Thank you once again. Best of luck for Okay, your bye. future endeavors, sir. Thank you so much. Thank you. Same to you.